ਮੰਤਰ ਜੰਤਰ ਤੇ ਤੰਤਰ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਖਾਸ ਅਸਥਾਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਾਕ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂ। ਨਮੋ ਮੰਤਰ ਮੰਤਰੰ, ਨਮੋ ਜੰਤਰ ਜੰਤਰੰ, ਨਮੋ ਇਸ਼ਟ ਇਸ਼ਟੇ, ਨਮੋ ਤੰਤਰ ਤੰਤਰੰ। ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ हे ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਸਿਰਮੌਰ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਜੰਤਰਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਸਿਰਮੌਰ ਜੰਤਰ ਹੈ, ਔਰ ਤੂੰ ਤੰਤਰਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਸਿਰਮੌਰ ਤੰਤਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਮੌਰ ਇਸ਼ਟ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਹ ਅਗੰਮੀ ਬਾਣੀ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਅਜੇ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਕਿਤੇ 10-15% ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਪੜਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਝਣਾ ਹਨੂਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਦੂਰ ਅਸਤ, ਅਜੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰ ਬੋਲ, ਮੰਤਰ ਵਾਕ, ਮੰਤਰ ਆਵਾਜ਼, ਉਸਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਉਸਦੇ ਬੋਲ। ਮੰਤਰ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਤੰਤਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਂਤਰਿਕ ਵਿਦਿਆ ਨਾਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨਾ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਕਾਮਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੰਡੇਲ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਉਸ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੰਤਰ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂਤਰਿਕ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਵੀ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਨ। ਮੰਤਰ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਰਸਨਾ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮੰਤਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਔਰ ਰਸ ਨਾਲ ਹਿਰਦਾ ਭਰ ਜਾਏ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਭਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਤਰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਦਾਗਾ ਤਵੀਜ਼ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯੰਤਰਿਕ ਸਿੱਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਯਾਂਤਰਿਕ ਸਿੱਧੀ, ਤੰਤਰ ਸਿੱਧੀ, ਮੰਤਰ ਸਿੱਧੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਧਰੇ ਮੰਤਰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹ ਗੁਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੰਤਰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੋਲਾ ਕਾਫੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂਤਰਿਕ ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਮੰਤਰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਛੁਪੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚਾਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇ ਛੁਪ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਗੁਮਨਾਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂਤਰਿਕ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਨੇ ਮੰਤਰ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਰਵਿਦਾਸ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੋ ਨਾ। ਜਦ ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸੀ ਔਰ ਹਰ ਕਰਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਹਰ ਬੋਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੋ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸੀ, ਬੋਲਾਂ ਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸੀ, ਕਰਮਾਂ ਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਦੇ 'ਚ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ 'ਚ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬੋਲਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਧਰਮ ਦੀ ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਟਾਣਾ, ਔਰ ਜਿਤਨਾ ਮਨੁੱਖ ਮਿਟਦਾ ਹੈ ਉਤਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਲੋ
कोई 10% अपने आप को मिटाने दे सफल होया है, उस मनुख की जिंदगी 10% परमात्मा प्रगट होया। इंज कह लो, कुछ प्रकाश प्रगट होया, कुछ रस प्रगट होया। ते जिसने अपने आप को अद्धा मिटा दिता है, बहुत कुछ मिटा दिता है, लेकिन फिर भी पूरन नहीं मिटिया। सतो गुणी कम से कम अपने आप को अद्धा ते मिटा देंदा है। रजो गुणी तमो गुणी ये पूर्ण तौर ते अपने आप को ही प्रगट करते हैं। इंज कह लो, इन्हां दी दुनिया च रब नहीं आउंदा, रब मिटिया हुंदा। या जीवन दे कहंदे ने खुद नूं मिटाओ या परमात्मा नूं मिटाओ। नास्तिक किस नूं कहंदे ने? मेरी कोई आस्था नहीं, कोई परमात्मा नहीं, कोई ईश्वर नहीं, और ईश्वर लिए मेरे को कोई टाइम नहीं, कोई वक्त नहीं, है ही नहीं। इसने अपने आप को इतना उजागर किया है, अपने कर्म दे राही, अपने व्यवहार दे राही, अपने विचार दे राही, अपने बोला राही। परमात्मा नहीं है। और एक ऐसी अवस्था बनती है साधना करने वाले दी, भगती करने वाले दी, नाम जपण वाले दी, मिट जाता है उसकी जात पात कुल, उसका संग्रह किया ज्ञान, उसकी अपनी होंद, उसके अपने विचार। हुण विचारां दे च भी परमात्मा है, व्यवहार दे च भी परमात्मा है, कर्मां दे च भी परमात्मा है, बोलां दे च भी परमात्मा है। हुण मैं अर्ज करां, मनुख जिहड़ा बाहर प्रगट होंदा है, करीबन 90% बोल आ रहा है। तो कदी जगत भर दे बोल पढ़न की कोशिश करना, बोल दे च मनुख की जात प्रगट हो रही है, पात प्रगट हो रही है, उहदे गुण प्रगट हो रहे हैं, अवगुण प्रगट हो रहे हैं, उसका व्यवहार प्रगट हो रहा है, उसके विचार प्रगट हो रहे हैं, उसका आचार प्रगट हो रहा है बोलां दे राहें। कदी कदाई ऐसे बोल आउंदे ने जिन्हां असीं कह सकते हैं कि बोल ते परमात्मा दे ने, ईश्वर दे, ये मनुख दे नहीं हो सकते। और जद किधरे परमात्मा किसी दे अंदरों बोल पैंदा है, उस हालत दे विच जद अपना आप खामोश हो जाता है। इस वास्ते सिख जगत ने, गुरमत ने जोर लाया स्रोता बनन ते। दो मनुख आमने सामने बैठे होण ते दोवें इकट्ठे बोलन तो दोहां दे पल्ले कुछ नहीं पेगा, कुछ भी नहीं पेगा, क्योंकि दोवें इकट्ठे बोलते पे ने। एक चुप करे, एक बोले, तां कुछ जो है पल्ले पै सकता है। तो ठाकर हमरा सद बोलंदा, परमात्मा सदा बोल रहे है, उसकी आवाज सदा ब्रह्मंड दे च गूंज रही है। यह नहीं कि सवेरे बोलता है ते शाम नूं नहीं, दोपहरी बोलता है ते रात नूं नहीं, हर वक्त वो बोल गूंज रहा है। सुनाई क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि असी भी बोल रहे हैं, असी नहीं चुप करते। एक चुप करे, दोवें वक्ते बने हुए ने, परमात्मा भी वक्ता बने हुए है, असी भी वक्ते। धर्म की सारी साधना है अपने आप को चुप कराने दी, खामोश कराने दी। ये मौन धारण की जिहड़ी प्रक्रिया चली सी ते बाहरों चली सी, मन नूं चुप कराना है। मन बोलदा, जिस दिन मन चुप करदा है उसे दिन परमात्मा दे बोल सुनाई देंदे, उस तो पहले नहीं। उस तो पहले इस तरह के मनुख दे कोल अपने बोल होणगे, क्योंकि मन जो बोलता पिया, चाहे वह धर्म दे बोल पिया बोले, चाहे वह परमात्मा दे भी बोल पिया बोले। मैं फिर अर्ज करा, फिर भी वह परमात्मा दे बोल नहीं ने। मैं सीमा रखदा क्योंकि पता नहीं हाजमे हर एक दे अलग अलग ने, गल पचदी है कि नहीं। भावें परमात्मा की कथा हो रही है, अगर मन ही बोल रहे तो क्षमा करने कि उस मनुख की ही कथा हो रही है।
वही अपना अनुभव कह रहे हैं और कुछ भी नहीं। परमात्मा नहीं है, ये सब उपरों ही उपरों लीपा पोती है। गुणी ज्ञानी बहु उपदेसी ए जग सगलो धंधा। गुरु अमरदास। जगत विच बड़ियां कथा कहानियां चल रही ने, एक धंधा है गुरु अमरदास, एक व्यवहार है, एक रोजमर्रा दी उन्हां दी जिंदगी बन गई है। कहना है गुरु अमरदास जी महाराज दे ना बोलां नूं मैं कई दिन सोचदा रहा। गुणी ज्ञानी बहु उपदेसी, बड़ा उपदेश चल रहा है सारी दुनिया। महाराज कह रहे ने धर्म नहीं है, चाहे उपदेश मस्जिद दे चल रहा है, मंदिर दे चल रहा है, गुरुद्वारे चल रहा है, धर्म नहीं है तो महाराज फिर एक ही है। ये जग सगलो धंधा, धंधा चल रहा है, धर्म नहीं चल रहा। धर्म तो उदों होंदा है जद किसी दे अंदरों रब बोले, परमात्मा ही बोले, पर धर्म पे बोलना। बोलिए सच धर्म, झूठ ना बोलिए, धर्म की ये सच। ते सच सच चो ही निकल सकता, इस झूठे शरीर तो नहीं निकल सकता, इस झूठे मन तो नहीं निकल सकता। इतनी महर्स करते हैं, उते आत्मा तो निकलेगा, वो सच स्वरूप है। इस वास्ते इस तरह के पुरुषों ने जिन्हां दे अंदरों ये बोल प्रगट होए, उन्होंने कह दिता ये बोल साडे नहीं ने। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ते अनवान इस तरह लिखते ने, अकाल पुरख वाच अस कीट प्रत। मैं कीड़े नो, कीट कहते ने कीड़े नो, मैं छोटे जिहा कीड़े नो परमात्मा ने एक साज की तरह इस्तेमाल किया है। ये बोल उस दे ने, अकाल पुरख वाच, ये प्रभु दे बचन ने। ये जो मेरे मैं कीट दे राही प्रगट हो रहे ने, ये कीड़े दे शब्द नहीं ने, ये कीड़े दे बोल नहीं ने। अकाल पुरख वाच अस कीट प्रत, जो निज प्रभु मोह सो कहा, सो कहो जग माया। जगत जो सुन रहे है इति प्रभु दे बोल ने। और गुरु नानक ते इत्थे तक कहंदे ने, हो आपो बोल न जानदा, हो कहा सब हुक्म आओ जियो, मैनू कहना ही नहीं आउंदा, मैनू बोलना ही नहीं आउंदा, मैं बोल ही नहीं सकता, मैनू कहना ही नहीं आउंदा। फिर इतनी बाणी तुसी आखी है, इतने बोल तुसी आखे ने, हजारां शब्द ने। महाराज कहते नहीं, ये तो खसम दे बोल ने, अपने हैं ने, आपां तो कदों दे चुप कर गए। जिस दिन मनुख चुप करदा है, समझदे ते ये 5000 साल पहले ही गल आ गई सी कि धर्म की साधना की अपने आप को चुप कराना। तो एकदम चुप कराना बड़ा औखा सी, तो मौन धारण की प्रक्रिया चली भी पहले बोलो ही ना, जबान ना बोले। शायद एक दिन फिर मन भी चुप कर जाए। पर महर्स करा इसकी सफलता हो सकता है किधरे हजारां दे चों एक अद मनुख नूं लभी होवे, कोई सफलता मिलती नहीं। इस वास्ते गुरु नानक सहमत भी नहीं होए, चुपे चुप ना हो गई जे लाए रहा लिवतार। लगातार एक लिवतार जे चुप कर जाइए, मौन धारण कर जाइए, तां भी मन चुप नहीं करता। मन चुप करे ते परमात्मा की आवाज सुनाई देवे। मन ने ते अपना रोला पाया होया बड़ा जोरदार। आप इतने सारे सज्जन बैठे हो ना, एक गल ते मैं अपने अनुभव के आधार ते दावे नाल कह सकदा, गुस्ताखी माफ, हर एक दा मन बोल रहा। ते जे हुण हर एक दा मन बोल रहा है ते गुरु दी बाणी दा कीर्तन हो रहा होवे, गुरु दी बाणी दी कथा हो रही होवे, इंज कह लो गुरु बोल रहा है तो फिर मन भी बोल रहा है, तो श्रोता कौन बनेगा, कौन सुनेगा, किसने श्रोता बनना।
अगर वाकई कोई श्रोता बन जाए तो मैं हमेशा कहना होना, नानक भगतां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नास। मन नहीं सुनता, मन बोलता है। मन नूं बोलण दी आदत है, बोली जांदा बोली जांदा बोली जांदा। महात्मा बुद्ध ते कहंदे सन, किसे ज्ञान दी लोड़ नहीं, किसे कर्म दी लोड़ नहीं, किसे यतन दी लोड़ नहीं, बस तुसी चुप कर जाओ, परमात्मा बोलण लग पेगा। वो बोलदा ही पिया, सुनाई क्यों नहीं दे रहा? थोड़े अपने बोल इतने उच्चे ने, इतने जोर दे बोल रहे हो, वो अनाहद नाद नहीं सुनाई दे रहे। ठाकर हमरा सद बोलंदा ते सदा बोलदा पिया। तो मैं फिर दोहरावा, मनुख 90% अपने बोला राही प्रगट होंदा है। इदा मूंह मत्था वेख के कुछ नहीं पता चलता है की है, इदे हाथ पैर वेख के कुछ नहीं पता चलता है की है, इदे नैन नक्श वेख के कुछ भी नहीं पता चलता है की है। बोलां तो पता चलता है। बोल दे इसदा आचार, बोलां दे इसदा व्यवहार, बोलां दे इसदा सुभाव सब प्रगट होंदा है। बोली दस देंदे ने तमो गुणी है, बोली दस देंदे ने रजो गुणी है, बोली दस देंदे ने सतो गुणी है। बोलत ही पहचानिए साध असाध को थाट, अंतर की कर नहीं सवे निकसे मुख की बाट। पर जिथे आम मनुख 90% अपने बोला राही प्रगट होंदा है, परमात्मा 100% 100% बोला राही प्रगट होंदा है, अपने वाक राही प्रगट होंदा है। पूरन तौर ते अपने वाक राही प्रगट होंदा है। और जिसनों परमात्मा नूं सुनन दी जाच आ गई, वेखण दी जाच उसे नूं आंदी है। क्योंकि जिस दिन परमात्मा नूं सुनदा है, उसे दिन ही उसकी अखां खुलदियां ने, उस तो पहले खुलदियां ही नहीं। और उसे ही अख नूं कहा गया त्रिलोचन। लोचन कहते हैं अख नूं, त्रिलोचन तीसरा लोचन, तीसरी अख। ये त्रिलोचन नाम परमात्मा दा वैसे। तीजी अख, वो जिहड़ी तीजी अख है एक दिखाई देंदा है। ये जिहड़ियां दो अखां ने दो दिखाई देंदे। मैं फिर अर्ज करा, दो दिखाई देंदे ने। रोशनी दिखाई देंदी है, अंधेरा दिखाई देंदा है, छोटा दिखाई देंदा है, वड्डा दिखाई देंदा है। सिर्फ स्त्री नहीं दिखाई देंदी, पुरुष भी दिखाई देंदा है। जे सियाणा दिखाई देंदा है तो फिर कोई मूर्ख भी दिखाई देंदा है। दो दिखाई देंदे। कदी बगौर मुताला करना, एक नहीं दिखाई देंदा, एक दे देखदियां दूसरा कल्पना दे रूप विच खड़ा हो जाता है। ईमान है तो लाजमी कोई बहुत ईमानदार है। संसार ते दो रंगी है, ये अखां दो, दोवें अखां दो देखदियां। हिंदू दिसदा है, मुस्लिम दिखदा है। सिर्फ हिंदू नहीं दिखता, मुसलमान दिखाई देंदा। सिर्फ मुसलमान नहीं दिखाई देंदा, यहूदी दिखाई देंदा। सिर्फ यहूदी नहीं दिखाई देंदा, ईसाई दिखाई देंदा। दूसरा फौरन सामने खड़ा हो जाता है। ये अपना है तो कोई पराया भी खड़ा हो जाता है। ये पराया है तो फिर कोई अपना भी खड़ा हो जाता है। मैं दोहरा रहा गल कि दो अखां दो देखदियां, एक नहीं देखदी। हर वक्त ये दो देखदियां, ये अपना है, ये अपना नहीं, तो दोवां दी वंड हो गई। ये मूर्ख है, ये सियाणा है, ये सुंदर है, ये करूप है, ये स्त्री है, ये पुरुष है। दो, हर वक्त दो दिखाई देंगे। समस्त वरेज एक सूफी संत होया, कहंदे दोई रा चौं बदर करदम, दो आलम रा यके दीदम। जिस दिन दिया दो नजरां मेरियां मिट गई ने, दो अखां मेरियां बंद हो गई ने, एक दिखाई दे रहे।
दूजा है ही नहीं। दोई रा चौं बदर करदम, दो आलम रा यके दीदम। एक है। धन गुरु नानक देव जी महाराज दे कंठ तो जिहड़ा पहला ब्रह्म वाक प्रगट होया है, एक। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दा जिहड़ा पहला बचन है, एक। वो एक की है, वो एक ओंकार है। हुण आप दी ज्ञात लई अर्ज करां, भारत दे प्राचीन ऋषियां ने जिन्हां दा मन चुप कर गया मौनी हो गए। जिन्हां दा मन चुप कर जाए मौनी उन्हां नूं आखिया गया। जो जबान करके नहीं बोलते अजकल उन्हां नूं मौनी जी महाराज करके कहंदे ने, बई नहीं बोलते, मौनी ने, चुप कर गए। और अक्सर ऐसा देखा गया है, इधर जबान ने मौन धारण किया है, इधर मन पहले नालों भी ज्यादा बोलन लग पैंदा। क्योंकि जबान दे बोलन नाल जिहड़ी शक्ति कुछ बाहर जांदी सी, वो भी सारी मन नूं मिल गई, तो मन बहुत बोलदा है। मौनियां दे मन जितने कल्पे होए होंदे ने, उतने उन्हां दे नहीं आउंदे गुस्ताखी मां जिहड़े कुछ बोल लेंदे, अगर सारथिक बोल लेंदे। मन इस तरीके नाल अगर चुप कर सकदा कि सिर्फ जबान नो चुप करो ते मन चुप कर जाएगा, ते जैसे मन चुप करेगा वो परमात्मा दा नाद जो ब्रह्मंड दे च गूंज रहा है, ये विज्ञान दी पकड़ दे च नहीं आया। विज्ञान पदार्थ नो तोड़दा 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 जिस बारीक दशा दे च पहुंचे है, वो परमाणु तक पहुंचे, इस तो अगे नहीं जा सकिया। जो पदार्थ दा सब तो सूक्ष्म रूप विज्ञान दी पकड़ दे चाहे, साइंटिस्ट दी पकड़ दे चाहे, ते परमाणु अणु। अपने मन दी खोज करदियां 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 एक साधक पहुंचिया परमात्मा तक, और उस तो अगे कुछ भी नहीं। एक नूं अखीर दे हथ च आए ने कि परमाणु, एक नूं अखीर दिसिया परमात्मा। एक नूं असी साइंटिस्ट कहंदे हैं, एक नूं असी संत कहंदे। खोज दोहां दी महान है, क्योंकि हर मनुख पदार्थ नूं तोड़ के ते प्रवाह पदार्थ दे च भी प्रवेश नहीं कर सकता। हर एक बंदा आइंस्टीन थोड़ी बन सकता है, गणित विद्या दा इतना वड्डा माहिर। तो खैर मुख्तसर में अर्ज करा, बहुत नाम लमकावा। पदार्थ दे तह दे च प्रवेश करके पदार्थ नूं तोड़दियां विज्ञान एक थां ते रुके, अणु तक पहुंचे, परमाणु तक पहुंचे। अपने मन नूं मारदियां तोड़दियां मिटांदियां एक साधक, एक ध्यानी, एक अभ्यासी परमात्मा तक पहुंचे। उसकी भी बड़ी लंबी यात्रा, उसकी भी बड़ी गहरी खोज है, उसकी भी बहुत वड्डी तपस्या, और शायद ऐसी खोज जो दुनिया दे इस तरह की होर कोई खोज नहीं। और इस खोज दे जितनी पीड़ा दे चों एक अभ्यासी लंघदा है, शायद ही कोई लंघदा होवे। लंघदे ने बाकी भी पीड़ा दे चों, और पीड़ा तड़पाएगी, पीड़ा रुलाएगी लाजमी। इतनी मैं अर्ज करा, पीड़ा पुरुष नूं भी रुलांदी है, स्त्री नूं भी रुलांदी है। जो अनुभव दे गल आई है, स्त्री छेती रो लैंदी है, पुरुष हंजुआं नूं पी लैंदा। इस वास्ते आंकड़े ने मनोविज्ञानियां दे कि जितने पुरुष पागल आउंदे ने, इतनियां स्त्रियां पागल नहीं आउंदियां। कारण एक गुबार सी, रो पईयां, हंजुआं दे राहें ही पीड़ा निकल गई। मन हौला हो गया, हल्का हो गया। पागल होने की घट संभावना रहिंदी है। रोज रोज पुरुष हंजू पींदा जा रहा है, शर्म दा मारा। क्यों? अगर रोवे कहने की जनानियां दी तरह रो रहा है,
पर कौन दसे अखां विच दोहां दे परमात्मा ने हंझू पाए ने, उसे तरह दे पाए। एक भावना दे रेख दे च आके पीड़ा दे ते पीड़ा विछोड़े दी आउंदी है। कुछ भी होवे, धन दा विछोड़ा, परिवार दा विछोड़ा, वतन दा विछोड़ा, सेहत दा विछोड़ा, इज्जत मान मर्यादा दा विछोड़ा, कुछ भी विछड़े पीड़ा है ते पीड़ा रुलांदी है। स्त्री रो लैंदी है, पुरुष हंझू पी लैंदा। इस दे कुल हंझू बहुत इकट्ठे हो जाते ने अंदर, एक दिन पागल हो जाता। पागलपन का मतलब की है, इन्हें सारे ही हंझू अंदर जज़ब करता है। भगत भी रो पैंदे ने, इन्हां कोल बड़ा वड्डा विछोड़ा है परमात्मा दा। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने, और रह ना सका बिन देखे प्रीतमा, मैं नीर वहे वह चले जियो। ये हंझू पता नहीं कितने जन्मां दे पापां नूं धो के परे सुट देंदे ने। कितनी दफा जपजी साहब पढ़िया सी, कितना दान कीता सी, कितनी सेवा कीती सी, हिरदे दे गुबार नहीं धुले सन, गुनाह नहीं धुले सन। वाहिगुरु वाहिगुरु करदे आया, वाहिगुरु दा विछोड़ा महसूस होया, चीख निकल गई, रुदन निकल पिया। धुल गए गुनाह, धुल गए पाप। लखा करोड़ां दे दान ने गुनाह नहीं धोए सन। पता नहीं कितने जप तप ने पाप नहीं धोते सन। पाप धुल गए ने। इहदी पहचान किस तरह होवेगी, ये भी मैं अर्ज कर दें। अगर कीते हुए पाप चेते आ रहे ने, नहीं धुले, मौजूद ने, अज अंदर पए ने, ताई ते याद आ रहे ने। कीतियां या गलतियां नहीं मिटियां, सबूत की है, अगर याद आ रही हैं तो नहीं मिटियां। अगर गुनाह कीते हुए याद आ रहे हैं तो नहीं धुले, मौजूद ने, अजय नहीं मिटे। जिस दिन रब्बी विछोड़े दी पीड़ा मनुख नूं तड़पांदी है, और उसे तड़पण दे ये हंझू निकलते ने, एक गुनाह धुल जाते, मन हौला हो जाता है, हल्का हो जाता है। पानी जैसे बार सारी धुलाई दे कम दे असी वरतदे हां, यकीन जानो हिरदे दी धुलाई इस तरह होंदी है, बशर्ते परमात्मा दे विछोड़े च ये हंझू निकलन। पदार्थां दे विछोड़े च ये निकले ने, पागलपने तो बच जाएगा, नहीं होवेगा, हिरदा फिर भी हौला हो जाएगा। पर हंझू पींदा गया, पींदा गया, परिवार बिछड़े, हंझू पी ले ने। मेरे सामने पता नहीं कितनिया ने आख्या, देखो भरा दा विछोड़ा होया, फलाना रोया ही नहीं, पुत्र दा विछोड़ा होया, फलाना रोया ही नहीं। मैं कि झूठा मान दे रहे हैं, असी गलत मान दे रहे हैं। शायद रो लेंदा ते इस दे अंदर इतना गुबार नहीं होना सी। तो मैं फिर अर्ज करा, छोटी जी पीड़ा, छोटा जिहा विछोड़ा स्त्री नूं छेती रुला देंदा है, पागलपने तो बच जाती है। पुरुष हंझू पी लैंदा है, तनावग्रस्त रहिंदा है। भगत दे अंदरों भी एक रोना निकलदा है, वो है परमात्मा दा विछोड़ा। हो रह ना सका बिन देखे प्रीतमा, मैं नीर वहे वह चले जियो। धन गुरु नानक देव जी महाराज ते इत्थे तक कहंदे ने, मैं रोन रोवंदी सब जग रोना, रोने वनो पंखेरो, एक ना रोना मेरे तन का बिरहा, जिन हो पिरों विछोड़ी। अखां ते मेरियां भी रो पईयां गुरु नानक, मैनू रोंदा देख के पंछी भी रो पे ने। मेरे रोने ने इतना मुतासर किया है, मेरे रोने ने इतना प्रभावित किया है। मैं रोवंदी सब जग रोना, रोनड़े वणों पंखेरो, एक ना रोना मेरे तन का बिरहा।
ये अंदर जो विछोड़ा परमात्मा दा है, ये विछोड़ा नहीं रोया। एक बहुत गहरी गल सतगुरु कह रहा है, जिस दिन विछोड़ा रहे रो पैंदा है, मिलाप हो जाता है, विछोड़ा खत्म। विछोड़े तो एक पीड़ा है, वो पीड़ा रोण ते मजबूर पई कर दी। अजे विछोड़ा नहीं रोया, ये भी मैं अर्ज करते हैं, गहराई विच किसी दिन महसूस होगा जरूर। इधर विछोड़ा रोया है, इधर मिलाप होगा। एक ना रोना मेरे तन का बिरहा, जिन हों पिरों विछोड़ी। विछोड़े करके ते मैं रोया, पर जिस हृदय नो ये विछोड़ा महसूस हो रहा है, विछोड़ा नहीं रोया, इनमें मौजूद है, ये बैठा है अजय, ये नहीं मिटेया, ये नहीं रोया। तो खैर अवस्थावां ने धन गुरु नानक देव जी महाराज जी ने बकायदा स्पष्ट कर दिता है। अब कहने मैं रोवंदी सब जग रोना, रोनड़े वणों पंखेरो। एक ना रोना मेरे तन का बिरा, जिन हों पिरों विछोड़ी। भाई साहब भाई नंदलाल ते इसनों होर एक आलमाना रंगत देंदे ने, वो भी कहते हैं ते अगे चला। शाखे उम्मीद आशिक हरगिज समर न गीरत। ऐ प्रेमी तू आसा दा बूटा लाया है, उम्मीद दा बूटा लाया है, मिलाप दा फल नहीं लगेगा, कतई नहीं लगेगा। हुण भाई साहब भाई नंदलाल जैसे पुरुष तो असी असीस मंगीए, आशीर्वाद मंगीए, की कह रहे हो तुसी? ये तुसी की आख रहे हो? ये जो उम्मीद करके गुरुद्वारे आए मिलाप नहीं होवेगा, ये जो उम्मीद करके बाणी पढ़ते पे मिलाप नहीं होवेगा, ये जो उम्मीद नु मुख रख के सेवा पे करते हैं, दान पुण्य पे करते हैं, मिलाप नहीं होवेगा। भाई सब कहने नहीं होवेगा। क्यों नहीं होवेगा? शाखे उम्मीद आशिक हरगिज समर न गीरत। फल नो पर्शियन देच, अरबी देच, पश्तो देच, कंधारी भाषा च समर कहंदे। समर फल। हरगिज समर न गीरत, समर नहीं लगेगा, फल नहीं लगेगा। क्यों? कारण अज आबे अशके में जगा ता सबर स्तर न बाशत। तो उम्मीद दे बूटे नो सिंचिया नहीं, पानी नहीं पाया, फल किथे? ते भाई साहब कोल पूछिए, जो उम्मीद दा बूटा है, आसा दा बूटा है, उम्मीद रखते पे मिलाप होवेगा। इस बूटे च केड़ा पानी पाइए? अज आबे अशके मैजगा। अखां दी जो दो पुतलियां ने, इन्हां पर्शियन दे च मैजगा कहंदे। अज आबे अशके मैजगा ता सबज तरना बाश। जितने चिर तक दो पलकां दा पानी तो उम्मीद दे बूटे दे च रज के नहीं पांदा, मिलाप दा फल किथे? रोया होवेगा पुत्रां दी खातर, मित्रां दी खातर, पत्नी दी खातर, पति दी खातर, भरावां दी खातर, धन संपदा दी खातर, मान मर्यादा दी खातर, सता दी खातर, प्रभुता दी खातर। तो प्रभु दी खातर कदों रो रहे हैं? रोया ही नहीं। इतनी गहरी पीड़ा तड़पा देंदी है। इस वास्ते महात्मा बुद्ध ते कहंदे सन, सियाणी है वो मां जो बच्चे दा रोना ही सुन लेंदी है। बच्चा होर की बोले, बच्चे दा बोलना रोना ही है, और सब समझ जाते। भुखा है, इनू दुध पिलाना है, कोई लोड़ है, कोई तकलीफ। बच्चे दे रोने नो जे मां जानदी नहीं, समझदी नहीं, शायद मां होण दा माण फिर इस दे कोल नहीं है।
ये भी महर्ज करते हैं। मनोविग्यानक तो इतना कहते ने कि तूफान आया होवे, बदल गरजदे पे होवन, जोर दी बारिश दी आवाज होवे, बाहर बड़ी खड़ाक होवे, मां दी अख नहीं खुलदी, पर मध्यम जही आवाज दे मासूम बच्चा किधरे रो पिया, अख खुल जाती। अचेतन दे किधरे इसका ध्यान बच्चे की तरफ है, वरना बदलों की गरजत ने इसकी अख नहीं खोली। पवन की शां करके बाहर दे खड़ाक करके इसकी अख नहीं खुली। मध्यम जी आवाज दे बच्चा रोया है, अख खुल गई। ते जे मां दे कोल अचेतन मन दे भी इतनी सियाणप है, ते रब ते बड़ा सियाणा है, रोना सुन लैंदा। नहीं तेरे कोल कोई मंजे हुए शब्द, जिस दिन रब दा विछोड़ा उसदे मंत्र दे जाप दे राही महसूस होंदा है, हिरदा रो पैंदा है, प्रभु समझ जांदा है, इसे नूं समझदा। यही कारण है कि गुरु ग्रंथ साहिब विच इसदा बड़ा भारी जिक्र है। और बाबे फरीद ने ते अपने सारे सलोकां दे इंज कह लईए, खुदा दे अगों अपना रोना ही रख दिता भी होर मैनू कुछ नहीं आंदा। चिंत खटोला वाण दुख बिरे विछावण ले, ए हमारा जीवना तू साहिब सच्चे वे। वेख लब साडे को ले ही है, असी इस तरह जी रहे हैं, असी इस तरह जिंदगी बसर कर रहे हैं। तो खैर मैं अर्ज करा, ठाकर हमरा सदबोलंता सदा बोल रहे है, क्यों नहीं सुनाई दे रहा? मन भी सदा बोल रहे, तो दो कट्ठे बोलन तो फिर सुने कौन? साढ़े बोल अगर प्रभु नु चुप करा देन तो फिर असी प्रगट हो गए, गुस्ताखी माफ, परमात्मा खत्म हो गया। ध्यान नाल सरवण करना। परमात्मा दे बोल सानू चुप करा देन तो असी मिट गए, परमात्मा प्रगट हो गए। या ते मनुख दी जिंदगी च परमात्मा मिटिया होया रहेगा, भावें जगत दे च है, या फिर परमात्मा दी दृष्टि च समूह ब्रह्मंड दे च मनुख मिट जाएगा, परमात्मा ही परमात्मा। भगत कबीर कहते ने, अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय हैं, कोई न सके पछानी। कबीर मिट गया, कबीर एक बूंद सी, खत्म हो गया। राम एक सागर सी, वो बूंद सागर हो गई है। हुण कबीर नहीं है, हुण राम है। या ते मैं हां या फिर तू है, जब हम होते तब तो नहीं, अब तो ही मैं नहीं। तो परमात्मा वक्त है, ऐसा वक्त है, हर वक्त उसके बोल गूंज रहे हैं। उसी बोल लो आख्या गया ब्रह्म मंत्र, गुरु मंत्र, ईश्वर दा बोल, ईश्वरी मंत्र। प्राचीन सनातनी ऋषियां दी पकड़ दे च ये मंत्र जो आया, वो कहंदे ने ओम है। ओम ब्रह्मंड दी ध्वनि है, हर वक्त चल रही है। जैसे सनातनी ऋषि कहते ने, मन साडा चुप कीता, सानू प्रभु दी आवाज सुनाई देती, अनाहद नाद सुनिया। धर्म दी सारी साधन है अपने मन नू चुप कराने दी। जब जपजी साहब पढ़ रहे हो वो ना, तो भाव ये पैदा करो कि परमात्मा बोल रहे हैं। मैं कल अर्ज की सी, जरा दोहरा दें, कुछ नवे सज्जन आ जाते हैं। परमात्मा दे बोल जो सीधा पकड़ लवे वो अवतार है, गुरु है। ते परमात्मा दे बोल जो गुरु दे राही प्रगट जो है पकड़ लवे, वो सिख है, गुरमुख है, भगत संत। सिद्धे अपने आप को खामोश करके बिना किसी वसीले तो
ते परमात्मा दे बोलां नूं पकड़ लेना, सुन लेना हर एक दी तौफीक नहीं है। जिस मैं कल अर्ज की सी, हर मनुख चित्रकार नहीं होंदा, हर मनुख संगीतकार नहीं है, हर मनुख साइंटिस्ट नहीं है, हर मनुख संत भी नहीं है। पर हां, हर मनुख दा भविष्य संत जरूर हो सकता है। अज नहीं ते कल होवेगा, इस जन्म दे च नहीं ते अगले जन्म दे च होवेगा। संत होए बिना ते छुटकारा नहीं, गुरमुख होए बिना ते छुटकारा नहीं, ब्रह्म ज्ञानी होए बिना ते छुटकारा नहीं। जो सिद्धा इन्हां बोलां नूं प्रगट पकड़ लेंदा, जो ब्रह्मंड दे हर वक्त गूंज रहे ने, ठाकर हमरा सदबोल अंता, अवतार ने, ये पैगंबर ने, ये गुरु ने। पर पैगंबरां दे राही, गुरुआं दे राही जो बोलनो पकड़ लेंदा है, ते पकड़ना की है, खुद चुप कर गया, हुण सुनदा है, हुण गुरु नूं ही सुनदा है, हुण गुरबाणी सुनदा है। जब जपजी साहब पढ़ रहा है तो बस जपजी सुन रहा है, इहदा अपना मन नहीं बोल रहा। जब सुखमनी साहब पढ़ रहा है तो बस गुरु ही बोल रहा है, इसका अपना मन नहीं बोल रहा। पर कदी देखना, सुखमनी साहब दे राही परमात्मा बोल रहा है, साडा अपना मन भी बोल रहा है। आसा दीवार दे राही, जपजी साहब दे राही प्रभु बोल रहे है, परमात्मा बोल रहे, पर साडा अपना मन भी बोल रहा है। तो दोवां दे बोल कट्ठे चल रहे ने और आमने सामने चल रहे हैं, तो सुने कौन? या ते परमात्मा नूं कहिए तो चुप कर, मैनू सुन। जिसदी आवाज मिट जाए वो मिट गया। बाबा बोलते थे कहां गए, देही के संग रहते। इस देही दे जो बोलन वाला सी किथे गया? मनुख ते प्रगटे बोलां दे राही, देही ते पईए मुर्दे दी, बोल खत्म हो गए, बोल नहीं है। बोल दे राही ते इसने प्रगट होना सी, बोलना खत्म। परमात्मा चुप कर गया तो परमात्मा मिट गया। गुस्ताखी माफ। तेरे बोल परमात्मा नु चुप करा देन तो तेरे बोल बड़े वजनीन है, तेरे बोल बड़े महान ने। रब चुप कर गए, मिट गए। पर परमात्मा दे बोल तेनू चुप करा देन तो फिर तू मिट जाएगा। इस वास्ते हर मनुख कोशिश करदा ना सुनिए, ना सुनिए, मिट जावांगे, मिट जावांगे, खत्म हो जावांगे। ये मिटना जिसनों पहले कबूल होवे, महाराज गुरु नानक देव जी दे कहंदे ने ओही मेरे कोल आवे। पहला मरण कबूल। और मैं ये भी अर्ज कर दिया, मरदे दम तक भी जीवन दी लालसा बनी हुई है तो मरिया कौन है जे नहीं मरिया? वासना बद्दा आवे जाए, फिर जमेगा, फिर जमेगा। टोटल मौत उसे दी आउंदी है, पूर्ण मौत उसे दी आउंदी है जिसदा मन मर गया। और जैसे पूर्ण मौत आउंदी है, इन्हों पूर्ण जिंदगी मिल जाती है। ऐसी जिंदगी जिस विच मौत है ही नहीं। मुए बिन जीवन ना आई। उस मौत तो बिना जिंदगी किथे? उस मौत तो बिना जीवन किथे? धर्म दी साधना है अपने मन नूं मारन दी, ते मन मर गया, पहचान की होवेगी? हुण नहीं बोलदा, हुण सुनदा है। हुण इसनूं अनाहद नाद सुनाई देण लग पे। कदी कदी थोड़ा जिहा मुगालता भी हो जाता है, वक्ती तौर ते, आरजी तौर ते थोड़ी जिहा मन की खामोशी हो जाती है। उस दिन कुछ रस की झरनाहट मनुख दे अंदर वज पैंदी है, कुछ झलक भी दिखाई दे जाती। इस तरह मैं समझदा अगर कोई 1000 बंदे साधना करते होवन तो 50-60 दे अंदर ते ये झलक हो जाती है। क्योंकि ऐसा मैं देखदा हर शहर विच कुछ इस तरह दे बंदे ने जो इन्हां झलकां नूं वेख लैंदे ने, लेकिन मन मरिया नहीं आउंदा, मन मौजूद है।
थोड़ा जिहा वक्ती तौर ते किधरे खामोश होया, मरिया नहीं। इनो तुलसी इंज कहते ने, मैं जानियो मन मर गयो। किधरे रस आ गया होना, कोई झरनाट वज गई होनी, कोई आनंद की वर्षा हो गई होनी है, ये हो जाती है। ये उसकी दया है प्रभु की, इस तरह की झलक मिल जाती है। मैं जानियो मन मर गयो, अज हूं सो मरियो नाए। बरखा परी कुसंग की दादर ज्यों बिरड़ा है। आम भारत देश ते इस तरह का इत्थे तो मैनू पता नहीं, जैसे सावन का महीना शुरू होता है, बरसात शुरू होती है, चारों पासे डडुआं की आवाज सुनाई देती है, अगे पिछे नहीं। हैरानगी होती है, ये एक दिन दे कित्थों आ गए। अज मीह पिया ते अज ही डड्डू पे बोलते हैं। ये एक दिन दे किस तरह आ गए, कित्थों आ गए। कुछ ते कहते जमीन दे विच सन, मीह पिया है। कुछ कुदरत ने इसनूं इस तरह का बनाया है, काफी लंबे समय तक रह सकता है इस तरह दबिया होया चिक्कड़ दे सरोवरां दे जिथे पानी सुक गए। इधर मीह पिया, इधर पानी उपर आया, इसनों बाहर आने का मौका मिल गया, बोलन लग पे। दादर ज्यों बिरड़ा है। तुलसी कहना, मैं समझदा सी मन मेरा मर गया, अज मैं प्रभु की आवाज सुनी, अज मैं परमात्मा की झलक वेखी। इधर मैं खुशियां मनान लग पिया, हंकार की बरखा हो गई, मन फिर बोलन लग गया, मेंढक की तरह बोलन लग, डड्डू की तरह बोलन लग गया। कुसंगत की बारिश हो गई, हंकार की बारिश हो गई। मैनू इस गल का भी हंकार हो गया कि मैं परमात्मा नू सुन लिया, मैं उसकी झलक वेख ली। अमीर खुसरो ने भी रोंदे आया कहा, छुप गए वो साजे हस्ती छेड़ कर, अब तो बस आवाज ही आवाज। एक झलक भी मिली सी, मैं गवा बैठा। वो जिहड़ी आवाज सी जो मैं सुनी सी, बस उसका बोध है मेरे कोल कि मैं की सुनिया सी, उसका बोध है, उसनों मैं जबान नाल प्रगट कर सकदा। की सुनिया सी, खदीजा ने मोहम्मद साहब नू कहा, तो रसना बोल पई अल्लाह हो, अल्लाह हो, यही बोली गए, यही बोले। ब्रह्मंड दी ध्वनि है, मेरे पकड़ दे चाहिए, उन्होंने इस तरह पकड़ दे चाहिए। भारत दे तमाम ऋषि कहते ने ओंकार, ओंकार, ओम ओम। सारे, क्या जैनी, क्या बौद्धि, क्या सनातनी, ओंकार शब्द भारत दे सांझा है। सिख जगत दा, सनातनी जगत दा, जैन मत दा, बौद्ध मत दा, एक शब्द सांझा है। सारे महापुरुषों की पकड़ दे आया ओंकार, थोड़े जिहानों ओम दे रूप। ते मैं शायद पहले भी अर्ज की, भारत देश एक बहुत बड़ा तीरथ है, तीरथ